And as Onkar said, that you can post your questions to Mr. Kulkarni, Parag Kulkarni, and Onkar will be taking those questions. But in the meanwhile, अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है अभी तक जो कवर हुआ है या तो मैंने जो बोला है उसके बारे में, प्लीज सवाल कीजिए. Yeah, there is one question in the chat box. Should I read it out? Yes. It is about 1S scoring. Question is, if needed items are there in workplace, but no one item is unsafe, is in unsafe condition, how to assign score? Yeah. Actually, वही हम लोग बात कर रहे थे. We were discussing about that only. That in 5S scoring, whether it is 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, the point is that कोई भी जगह में अगर आपको लगे कि सेफ्टी रिलेटेड इशू है, तो जितना भी खूबसूरत हो आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका शॉप फ्लोर, you will straight away give yourself 0. Okay. Now the question is that if it is not 0, then that means to say that you are having something which is a workplace which is not unsafe. Then you should go for the next step. So next step क्या है? The पहला step है to get 1. 1 मिलने के लिए you have to have the very basic thing in place. What is that? जो needed item है और जो unneeded item है, वो workplace में अभी available है, दिखता है. मतलब you have not really sorted out the needed and unneeded item. मतलब ये एकदम आप level 1 में हो. मतलब आपको अगर सेफ्टी का प्रॉब्लम नहीं है तो आप शुरू कर रहे हो लेवल 1 से. तो शुरुआत में याद रखें कि शॉप फ्लोर में हम लोग ये कोशिश करते हैं कि एम्प्लॉयज आर एबल टू रियली फ्रीली मूव अराउंड विदाउट एनी स्ट्रेस. तो अदरवाइज यू विल गिव गेट 0. और उसके बाद 1 है बेसिक लेवल पे. 2 कहां पर दोगे? आपने 1S का इनिशिएटिव शुरू कर दिया है, यानी कि नीडेड और अननीडेड आइटम जो है उसको आपने अलग कर दिया, और अननीडेड आइटम जो है उसको आपने टैगिंग किया, जो टैगिंग के बारे में, रेड टैगिंग के बारे में ओंकार बात कर रहे थे. तो उस केस में आपको 2 मिलेगा. 3 कौन सी केस में दोगे आप? जहां पर रेड टैग एरिया आपने क्रिएट किया है और ऑल अननीडेड आइटम जो रेड टैग है वो आपने रेड टैग एरिया में आपने शिफ्ट कर दिया. तो उस केस में आप खुद को 2 दे सकते हो, यानी कि आपने एक विजुअल सिस्टम बना दिया जहां पर अननीडेड आइटम को दिखेगा. ठीक है. और नेक्स्ट है जो है कि सिस्टमेटिक 4 नंबर में, जहां पर लिस्ट ऑफ नीडेड आइटम्स है आपके पास, जिसको हम कहते हैं सेरी रजिस्टर, जहां पर नीडेड आइटम का लिस्ट है, उसको आप मेंटेन करते हो, उसको हम पोस्टेड करते हो. मैंने एक बात बोलना भूल गया, आप 3 कैटेगरी के अंदर रेड टैग रजिस्टर भी आना चाहिए. यानी कि not only that you have created a red tag area, the items should be registered in a red tag register. और 4 में needed item, फिर आप वापस आ जाओ needed item जो पड़ा हुआ है, क्योंकि unneeded item चला गया है red tag area में, जो पड़ा हुआ है वो needed item है. Now in the needed item you are now recording that, you are maintaining that. अगर वो needed से unneeded हो जाता है, खराब हो जाता है, उसको निकालने का एक सिस्टम भी बना दिया, तो आप 4 दो. और जैसे मैंने बोला प्रिवेंटिव यानी 5 स्कोर उस केस में मिलेगा आपको जहां पर अननीडेड आइटम अलाउ ही नहीं हो रहा है पूरा सिस्टम में. ठीक है. या थैंक यू. या लेट्स गो अहेड. एनी अदर क्वेश्चन? मिस्टर कुलकर्णी, अनम्यूट योरसेल्फ. अनम्यूट प्लीज. Yeah, I'm sorry. My suggestion is that we will take a 5-10 minute break so that everybody is comfortable, and we'll take questions once they join back. Yeah, but if somebody wants to ask a question, we don't mind repeating it again. But if somebody, I would like to give credit to that person who is not taking break but asking question. No, only point is others will miss valuable inputs. No. We will repeat. If somebody has this question, we will repeat because Onkar will definitely cover that. Not a problem. Okay, there is one question. And it will be in any way be available in the recording also. Yes. Right. Yeah. Another question is to fill all the 5S audit forms, how to manage the manpower? Any strategy plan, please let us know. No. आप जब
when you are doing your ISO 9000 audit, internal audit तो mandatory है, आप internal audit खुद का audit खुद करते हो. That time do you ask that do you have an extra manpower? No. Please understand what I told you on day one. ये 5S लीन करने के लिए कोई एक्स्ट्रा मैन पावर नहीं चाहिए. लेकिन बात ये है, मानिए कि आपके घर में आप 5S कर रहे हो, तो एक्स्ट्रा मैन पावर तो बिल्कुल नहीं लाओगे, पड़ोसी को तो नहीं लाओगे ना घर में कि हाउ डू यू रियली कम आउट विथ फॉर क्लीनिंग आवर हाउस. हाँ, एक दिन आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बट रिमेंबर दैट आफ्टर दैट योर लाइफ विल बी वेरी इजी. सो प्लीज अंडरस्टैंड, आपको 5S के अंदर 2 टाइप का असेसमेंट होता है. एक है खुद असेस करते हो आप खुद का वर्क प्लेस, और दूसरा है आपके कंपनी का, जैसे इंटरनल ऑडिटर होते हैं ISO 9000 के लिए, वैसे ही 5S के लिए भी इंटरनल ऑडिटर होता है. इट विल बी ग्रुप ऑफ 4 और 5 मेंबर्स. आई वुड पर्टिकुलरली प्रेफर दूसरी जगह का 1-2 ऑपरेटर्स, एक आध सुपरवाइजर, और जो 5S कोऑर्डिनेटर है वो, या तो 1-2 फैकल्टी मेंबर भी. ये 2-3 मेंबर, छोटा फैक्ट्री है तो 2 मेंबर का टीम आके वो 5S चेकलिस्ट के हिसाब से आप ऑडिट करोगे. No extra manpower is to be dedicated permanently. Please understand that for all these things. Yeah. Mr. Kulkarni. Yeah, no, these are the only 2 questions. Good. Anybody want to ask question? Please go ahead. Sir, one minute. Sagar here from Accurate. Yes. Actually, my subordinate, Mr. Rehan, he wanted to ask one question. हाँ, बोलिए ना उनको. Sir, how can we in SERI register, how can we categorize the number like 1, 2, 3? How can we provide the level of the SERI in the SERI register of items? SERI register में 1, 2, 3, 4, 5 मतलब मैंने समझा नहीं आपका सवाल. Please. In the SERI register, हाँ जी. 1 second. In the SERI register, we can categorize like 1, 2, 3 number. There is a showing. You are already. ओ, आप बोल रहे हो कि SERI register. हाँ. Okay. वो I think has Omkar covered this particular part? Yeah, he has covered. Okay, fine. तो 1 का मतलब है वांटेड एंड इन गुड कंडीशन. 2 का मतलब जैसे इधर एक्सप्लेन किया हुआ है. तो वैसे ही आप करोगे. मतलब देखिए, SERI रजिस्टर में एक्चुअली अगर इनिशियली आप उसको सारे माने अनवांटेड को छोड़ के बाकी 1 जो है और गुड कंडीशन में है गुड कंडीशन में नहीं है, रिपेयर चाहिए है, लेकिन ऑब्जेक्टिव मीट नहीं कर रहा है, कोई चेंज वगैरह चाहिए, मॉडिफिकेशन चाहिए आइटम का, और चाहिए लेकिन नहीं है, ये सारे आइटम SERI रजिस्टर में होना चाहिए. लेकिन ये जो अनवांटेड आइटम है, ये अगर है बाय चांस, आप देख रहे हो कि पहले वांटेड था अभी अनवांटेड हो गया, तो उसको उसके बाजू में 5 लिख के उसको डिस्पोज कर दो. Okay. And the second thing is that, sir, कि in the 1S audit, 5th point is not understand. Can you please explain? ये 5 नंबर जो प्रिवेंटिव टाइप है वो. Yes, sir. हाँ, मैं आपको बताता हूँ. देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली कि कोई भी सिस्टम में, कोई भी शॉप फ्लोर में या तो ऑफिस में 1S करने का जरूरत क्यों हो रहा है. जैसे मैंने बोला कि ह्यूमन बॉडी में 1S करने का कोई जरूरत नहीं होता है. अगर आपने कोई गलत इनपुट दिया है, मानिए कि आप बहुत ज्यादा अपने मैकडोनल्ड का बर्गर खाते हो, फास्ट फूड खाते हो, बहुत ज्यादा कोक पीते हो, या तो ऐसा भी काफी सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा ऐसे चीज लेते हैं, बॉडी को इंट्रोड्यूस करते हैं जो बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है. तो दैट लीड टू अल्सर, दैट लीड टू स्टोन फॉर्मेशन. देन यू रिक्वायर ए 1S इन द फॉर्म ऑफ रेड टैग कैंपेन. तो बॉडी का रेड टैग कैंपेन क्या है, मैंने बोला सर्जरी. तो ऐसे ही एक्चुअली आपका फैक्ट्री में कोई रेड टैग कैंपेन की जरूरत नहीं है. एक बार अगर किया है और एक बार डिस्पोजल, डेली डिस्पोजल सिस्टम आपने ठीक से किया है, तो बिफोर द सिचुएशन कम्स कि ये आइटम को मैं क्या करूंगा, इसको शॉप फ्लोर में रखूंगा या ये शॉप फ्लोर से बाहर निकाल दूंगा, अगर उस टाइम में आप डिसीजन लेते हो, कभी भी ये मुहूर्त नहीं आएगा आपका कि बाद में एक्यूमुलेटेड आइटम शॉप फ्लोर में मिले. तो उसका मतलब क्या है, 1S का पूरा सिस्टम सारे फैक्ट्री में लागू है. तो इसीलिए वो केस में आप बोलोगे कि हाँ ये फैक्ट्री प्रिवेंटिव है, ये रेड टैग आइटम जनरेट ही नहीं होता है. समझे आपने?
Next. Anybody has any other question? हाँ, Good थोड़ा evening, आवाज बढ़ाइए. हाँ, ठीक है. Okay. गुड इवनिंग सर. Good evening. सर राहुल बात कर रहा था. जैसे कि हमारा एक सिस्टम है 5S, तो उसमें एक पार्ट अभी जस्ट मैं कहाँ पे सुना था कि अभी 6S में भी उसमें कवर हो गया. जो 6S है अपना वो सेफ्टी है, वो करेक्ट है? नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड, ओरिजिनल जो जापानीज कॉन्सेप्ट जहां से हम लोग नॉट हम लोग जहां से सारे इंडिया, सारे यूएसए और एंटायर जापानीज प्रैक्टिसिंग, उधर 6S नहीं है. जैसे आजकल Q7 QC टूल्स को कोई लोग 8 QC टूल्स कहते हैं, मैं उसको 100 QC टूल्स भी कह सकता हूं. नहीं, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्यों. अभी आपने सुना ओंकार को कितना मेटिकुलसली उन्होंने आपको बताया कि 5S का 0 स्कोर जो है वो सारे सेफ्टी के ऊपर ही डेडिकेटेड है. तो वी आर नॉट इवेल्युएटिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड हियर. उसके लिए अलग सा सेफ्टी ऑडिट होता है. That we are going to cover. There is a module dedicated for how to create a safe workplace and how do you go about for auditing that safety of workplace. उसके लिए हम लोग एक अलग सा मॉड्यूल किए हैं. But please don't make 6S. We are going to talk about only 5S and everything will be covered within that. Is it okay? Yes, Rahul? okay sir. Yes, okay. Thank you sir. Thank you. Any other question please? ओके, अगर आपका सवाल नहीं है, then probably I can. Yeah, go ahead. So I have one question. आप पहले खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए, कंपनी को इंट्रोड्यूस कीजिए. I am Dr. Abhijit Sone from IMDR, Pune. All right. Yeah, please. Yes. Sir, this is regarding making divisions. Something he was talking zones. Yeah. तो yes. उसका एक एग्जांपल अगर दे दिया जाए ना कि डिपार्टमेंट को कैसे अपन एक शो कर सकते हैं. All right. Sure. That will be useful. Onkar, you want to take this question about zoning, subzoning area and line? जी हाँ बिल्कुल सर. Yeah, please. तो देखिए सर क्या होता है जब हम No, I जोन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था. Onkar, you have issue with the mic. Try again, Onkar. Is it audible sir? Yeah, please go ahead. Okay. So जब कभी भी सर हम बात करते हैं 5US जोन के बारे में, so it is more or less physical, जैसे कि मैंने बताने की कोशिश की थी, राइट. सो फर्स्ट थिंग जो हमको करना है, तो हमको हमारे यूनिट का या फिर प्लेस का लेआउट लेना है, राइट. और लेआउट भी देखिए डिपेंडेंट अपॉन आवर लेआउट, जो अरेंजमेंट जो है ऑफिस का, फैक्ट्री. जी हाँ, राइट. सो ये सवाल हमेशा आता है कि शैल वी डू इट आवर जोनिंग बेस्ड अपॉन द फंक्शंस, जैसे कि क्वालिटी का जोन अलग कर देंगे, प्रोडक्शन का अलग कर देंगे. इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू डू लाइक दैट, राइट. अगर फिजिकली वो बहुत नजदीक है एक के साथ, देन यू कैन मेंशन इट कि वो सब जोन है, राइट. नॉट नेसेसरी अ सेपरेट जोन, राइट. इट्स नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू मेक इट सेपरेट लाइक फंक्शन. It is more or less from a physical point of view उसका लोकेशन कहाँ है. So the best way is to take a layout. देखिए कहाँ पे है, उसको क्या हम segregation कर सकते हैं in terms of a different subzone. So that is how you should go ahead. I think I'm clear with the. Onkar, I'll just add couple of points Yes, for please. IMDR. हमेशा जब आप लोग zoning, subzoning, area zoning करोगे, please keep in mind about very basic gradation of the zoning. एकदम ऊपर में आता है zone leader, उसके नीचे आता है sub zone leader, then below that it is area leader, and then if it is shop floor, then line also may come. Okay, but in case of office, we will restrict ourselves to zoning, below that, under that subzoning, and under that the area demarcation. Now the question that you are asking is that how do we go ahead in doing that? What Onkar said is very important. Keep the entire area layout. Suppose, for example, that yours is a 3-floor building, okay? And in the 3-floor building, in the different floors, there are different departments who are allocated. What you do first is that
keep your layout on one side, keep your organization structure on one side. Okay. Now, importantly, understand that in a particular floor, which are the departments which are located, and ask this question physically, as Onkar said, are they independent or they are together? If they are together and you cannot separate it out, you do not have any other way but to club them together and then call it a subzone. Now the question is that which one is a subzone, which one is a zone? For that, you have to go to the organizational structure and try to understand from the organizational structure based on the persons who are of authority. Because what is the purpose of the entire 5S audit? That in case you find any problem, any issues, any non-conformity with regard to the checklist, you have to take action. So authority is also important, and zone leaders are authorized to take care of any issue, and in case there is any investment needed, they will get those things sanctioned. So try to keep the zone leader as minimum as possible, and then see that, for example, I would consider the entire floor, 3 floors, maybe for an office, I would say zone leader of floor 1, zone leader of floor 2, and zone leader of floor 3. And all the zone leaders will finally be reporting to the CEO. And under each zone, you try to find out that how many departments are located. So if there are 3 departments are located, you can call them subzone. But remember, this is not a hard and fast rule. It will totally depend on how the layout is. So it is a combination of the layout and the structure that you have to really look forward to. And then within that department, if there are sections, for example, drafting section, for example, there is a meeting room, they can be earmarked as area. I hope I have made it clear. Yes, Yeah. sir. Yes. Thank you. Any other question? Hello, sir. My name is Mohammad Rehan Alam. I belong to Accurate Industrial Control Private Limited. Yes. I have 2 questions, sir. Yeah. पहले एक. Okay, sir. First in, first out हम लोग करेंगे, हाँ, ठीक है? Okay, sir. First thing is that कि मेरे को जैसे लाइन प्रोडक्शन लाइन पे मटेरियल मेरे को 2 घंटे के बाद लगने वाला है, तो उस मटेरियल को जैसे 1S करेंगे तो उस मटेरियल को मुझे रेड टैग एरिया में रखना है या फिर प्रोडक्शन लाइन पे रखना है? नहीं. Very good question. Let me try to answer that question for you. देखिए, पहला पॉइंट है रेड टैग का डेफिनेशन ओंकार क्या बताया था. रेड टैग का मतलब है नीडेड और अननीडेड, राइट? उन्होंने वही बताया था. तो हाँ, आप ये बोल सकते हो कि ये सवाल कि ये आज नीडेड है क्या परसों नीडेड है. अगर वो परसों नीडेड है, डेफिनेटली इट शुड नॉट बी देयर इन द शॉप फ्लोर. सो दैट डेफिनेशन यू हैव टू रियली फ्रीज इन योर शॉप फ्लोर कि आपका, देखिए, आइडियली स्पीकिंग वी फॉलो इन लीन जस्ट इन टाइम सिस्टम. तो जस्ट इन टाइम का मतलब क्या है? कितना मिनट्स पहले आपका मटेरियल स्टोर से पॉइंट ऑफ यूज एरिया में आना चाहिए. अगर मानिए कि आप और स्टोर्स मिलके ये डिसाइड किया है कि आपका मटेरियल शुड बी केप्ट अवेलेबल इन द पॉइंट ऑफ यूज स्टोरेज एरिया अबाउट हाफ एन आवर बिफोर, सो अप टू दैट इट इज ओके. लेकिन मानिए कि अभी 1 घंटा या 2 घंटे का पहले बाद में जो मटेरियल लगेगा वो आपका शॉप फ्लोर में है, तो आपको वो 5S में डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम इट इज ए नॉन कन्फर्मिटी. यू शुड बी टेकिंग इट अप and you should be giving it a low score and taking up with the stores or for production or both कि ये material क्यों आया है and try to sort it out. So that means you should not keep it in the red tag area. You let it continue, but this is a problem of system, so the system should be sorted out. Have you understood? Okay, sir. Okay, fine. Second question. Sir, second question is that कि when I जब मैं पैलेट पे मटेरियल रखता हूँ तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? क्योंकि 1S आप अकॉर्डिंग टू यू सर कि 1S में पहले क्या देखते 0 पॉइंट कब मिलेगा जब कुछ तो डेंजर है, खतरा है, मतलब कुछ तो अपने को नुकसान होने का खतरा है. तो हाइट कितनी होनी चाहिए मटेरियल की वो पता करना है. ओंकार? श्योर सर. सो बेसिकली देखिए कि इसमें 2 चीजें हैं कि आप पैलेट पे क्या रख रहे हो और कितना वजन उठाने का आप मैन्युअली ट्राई कर रहे हो या फिर आपके पास कुछ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है. करेक्ट. अगर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हो तो टॉगल होने के चांसेस नहीं होने चाहिए, राइट? सो आई कैन नॉट गिव यू यूनिवर्सल आंसर
आंसर की है 5 फीट से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ऐसे भी हो सकता है कि 4 फीट का मटेरियल है लेकिन वो टॉगल हो सकता है और नीचे गिर सकता है, क्योंकि पैलेट है तो उसको कुछ रेलिंग नहीं होगी, राइट। सो इट इज अप टू द शॉप फ्लोर टू डिसाइड वेदर इट इज गोइंग कॉज एनी काइंड ऑफ एन एक्सीडेंट। जैसे कि मैंने एक चीज थी, थर्मोकॉल की एक फैक्ट्री थी, वहां पे 10 फीट का भी लोग आराम से उठाते थे, क्योंकि गिरने की वजह से कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम है, राइट। सो फॉर दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री आई विल से 10 फीट इज आल्सो ओके। बट कोई चीज टूल रूम है जैसे कि यहाँ पे हाइट ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर मैं मैन्युअली उठाने की कोशिश कर रहा हूँ तो एक्सीडेंट हो सकता है, राइट। सो आई होप यू आर क्लियर कि इट डिपेंड्स अपॉन काइंड ऑफ एन एप्लीकेशन, वो कहाँ पे यूज होने वाला है और कैसे यूज होने वाला है। प्रोफेसर, वुड यू लाइक टू ऐड? और I'll just add one or two points there. एक जो ओंकार बोला है वो बिल्कुल सही, क्योंकि मैं के नाग में काउंसलिंग करता था, जो कि ये फोम इस टाइप का मटेरियल वो यूज करते हैं, एंड एब्सोल्युटली 10 फीट ऊंचाई मटेरियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक आदमी लेके जा सकता है। और एक कई जगह है जहां पर एक डाई जो उतना बड़ा नहीं है वॉल्यूम में, लेकिन उसका वजन होगा काफी सारे टर्म्स ऑफ टॉनेज। तो जो ओंकार बोला है, आई टोटली एग्री विथ यू, but remember one thing, in general you have to take care, if it is a pallet and you are moving it by hydraulic pallet or a forklift, you must take care of the wobbling part. I would suggest in those cases that see the sling is good, and remember the sling, whatever sling you are using, if you are using a crane, you will be using a sling. In that case, sling का जो periodic certification है, उसको definitely you should be doing it through scientific methodology, that ये अगर 5 टन का sling है तो ये 5 टन अभी भी है. So that is just an extra additional point I'm giving you for OHP cranes. Thank you. Hello sir. Sir, yeah. Dinesh from Tara Tools. हाँ दिनेश, बोलिए। सर मैं ये कहता हूँ, हमारे इधर कंटिन्यूस 15 डेज के बाद हम 5 इयर्स का ऑडिट करते हैं, ओके। सब सेक्शन में 70 to 75% स्कोर आता है, लेकिन उसके आगे जाने के लिए हमको तकलीफ हो रही है, कुछ सजेशन मिलेगा? या ओंकार, देखिए हमने लास्ट 5 इयर्स जो सस्टेनेंस देखा, उसमें हम एक चीज देखे वहां पे कि अगर आपका स्कोर कंटिन्यूअसली 72 आ रहा है, so there are some points which might be troubling you over the period of time, okay. So मैं आपको एक डायरेक्शन दूंगा कि आपके पिछले 4-5 ऑडिट शीट जो है ना, वो लेके बैठिए और उसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि किस वजह से हम 72 तक आ रहे हैं कंटिन्यूअसली। Now those are the points that need to be discussed with your management, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि वो जो जोन स्ट्रक्चर में जो लोग हैं, जो ऑडिटर है, उसके प्रोबेबली बियॉन्ड है वो पॉइंट में आने के लिए, मतलब वो पॉइंट करेक्ट करने के लिए। सो यू हैव टू मेक अ समरी ऑफ ऑल सच पॉइंट्स, गो टू योर मैनेजमेंट, डिस्कस विद देम कि ये चीजें हैं जो कंटिन्यूअसली 5-6 ऑडिट की वजह से हमको 72 तक ला रहे हैं। देन मेक अ एक्शन प्लान। इफ इट इज अ इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड, you can have a dedicated action plan, and in next audit you can probably skip that because you have action plan in place, right? तो आप वैसे कर सकते हैं और ऑडिट का स्कोर बढ़ा सकते हैं। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इंक्रीजिंग द ऑडिट स्कोर, but if you have dedicated action plan for a thing which requires a long term investment, then it need to be backed up with the investment, right? So my suggestion, please analyze your audit sheet, come up with the points that are troubling you for over the period of time, and go towards management with those points. मैं इसके ऊपर आपको 2 एग्जांपल देना चाहूंगा। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। 2 एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। एग्जांपल नंबर 1, मानिए कि मेरे हाथ में अभी ये माउस है, ऑलराइट, ओके, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं। कुछ दिन बाद मैं देख रहा हूं कि इसका जो लाइट इंडिकेटर है पीछे वाला, ये बंद हो गया, लेकिन अभी भी काम चल रहा है। बराबर। प्रॉब्लम वही है कि हैव यू टेकन ए मैनेजमेंट डिसीजन कि जो आइटम ऑन द वर्ज ऑफ खराब होने का बॉर्डर लाइन में आ गया, उसको उसके बारे में आपने क्या गाइडलाइन दिया है? शुड यू विथड्रॉ इट और शुड यू कंटिन्यू इट? ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो आपका सिस्टम्स है, मानिए कि प्लीज अनम्यूट कीजिए प्लीज।
ओके, मानी कि जो आपका एंटायर 5S सिस्टम है, 1S है या 2S है या 3S है, मैं पहले 2S के बारे में बताता हूं। मानी कि ये डिजाइन किया है आपने फॉर एवरेज लोड। ओके, एवरेज लोड मतलब जब आपका पीक लोड नहीं है। तो अभी पीक लोड नहीं है, उसके लिए आपने स्टोरेज सिस्टम बनाया एवरेज लोड के हिसाब से, उसके लिए उसके ऊपर आपने पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरेज बनाया, सब कुछ उसी हिसाब से बनाया। अभी मानिए कि आपका पीक लोड शुरू हो गया, टाटा टूल्स को पता है, मैंने कई बार होता है ऐसा कि आपका कस्टमर को सडन डिमांड आ जाता है, आपने ये ऑर्डर को होल्ड करके बाकी ऑर्डर को पिकअप कर देते हैं, तो क्या होगा, आपका पूरा शॉप फ्लोर एकदम बर्बाद हो जाएगा। तो टेक ए कॉल दैट is your 5S shop load system is based on peak load system or average load system. Take a call with management. I'm sure you'll be able to address it. Okay, thank you. Yeah. Any other question, or I will take up some points which I felt that I would like to cover. Dr. Rai, there is one question in the chat box. Yeah. And that question is from previous session. What is the difference between KRA and KPI? Okay. There is one more question which I will take after answer to the first question. Okay. KRA is the key result area. Say, for example, for a production person, and it is being told by the production head to the engineer that, look, your key result area is the area of improving the operator's data logging. Okay. So in that case, the key result area, if it is related to operator's data logging or supervisor's data logging, so that means he is expected to focus his time in making sure कि मेरा जो operator supervisor है, they know how to do the data logging and they are doing the data logging properly. अगर नहीं हो रहा है, he will be guiding them to do that. And what is KPI? KPI could be that how many of the operators are able to do the data logging properly. That could be one key performance area related to the key result area. So first you define the KRA, key result area, then you define from there that based on collection of the data, how do you come to the KPI or key performance index. Yeah, Mr. Kulkarni.